Hello everyone, good morning. Hope you're enjoying the weather. The rains have started here. I don't know at your place, but in Pune, the rains have started quite. So it's a good weather around here. Take care of your health because of the changing weather. Perhaps you might, get some cold and all. Please take care. Okay. So let's begin with our maths class. Okay. So last lecture में हमने क्या क्या देखा था? तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, which were very important. और फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में we have seen three kind of formulas: compound angle formula, then we have complementary function formulas, then we have double angle formulas. So according to the last time जो मैंने questions prove करने को दिए थे, it taking reference of it we proved some double angle formulas. ठीक है. So we started with sin 2 theta, फिर हमने sin 2 theta को prove किया 2 sin theta cos theta. Then we proved in the format of tan theta we got this formula. फिर हमने जाके cos 2 theta भी prove किया as cos square theta minus sin square theta. Then we got this equation in form of sin theta, then in form of cos theta, right? And then we got tan 2 theta as 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. ठीक है, ये सब हमने प्रूव किया कल last lecture में. Then we just concluded with this double angle formulas. I hope you have noted it down. Okay. फिर आगे जाके हम लोग ने वापस रिवीजन किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलाज की. ओके. उसमें मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये तीन ध्यान में रखने. आई जस्ट बॉक्स देम, है ना. और तीन भी कैसे आप याद रखोगे? एक तो आप हेक्सागन से आप देख सकते हो डायरेक्टली. आई जस्ट मेक एन हेक्सागन फॉर यू. एक छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे. ठीक है. यहाँ क्या था? tan था, sin, cos, यहाँ पे था sec, यहाँ पे था cot, यहाँ पे था cosec. I believe you can see whatever I'm writing. Okay. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि sin का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन होता है, मतलब cos. तो sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, राइट. यहाँ पे भी आप देख सकते हो tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot. तो tan pi by 2 minus theta is cot theta, right? And sec का complementary होता है cosec. This co stands for complementary. So we have sec pi by 2 minus theta is equal to cosec theta. Okay. So it is needless to say कि इसका vice versa भी true होगा, right? कि cot of pi by 2 minus theta is tan theta, and like cos of pi by 2 minus theta is sin theta, and cosec of pi by 2 minus theta is sec theta. Okay. आई होप यहाँ तक आप सब लोग समझे हैं. अभी आगे what we'll do is first we'll just revise this angles thing again. ठीक है. ये लास्ट टाइम हमने ये एंगल्स का भी देखा था, कार्टेशियन प्लॉट का, this whole part. So we'll just revise because I got a message from a student कि सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करने में. I have to see again and again. So perhaps you have been in different backgrounds in your 10th class, so we'll just revise the trigonometric values a bit, and it will help you remember these facts also कि sin of n pi क्या होता है, cos of n pi. ठीक है. तो मैं आपको अभी जस्ट ये सिखाऊंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है. ठीक है. और क्या क्या चीज अपने आप बन जाएगी. नाउ वन थिंग इज, आप सिर्फ एक बेसिक सिंपल स्टेटमेंट याद रख सकते हो और एग्जाम में बाकी सारे चीज to find out the trigonometric values you can just work upon it and find it out. But what I'll tell you is कि क्या क्या चीज आप याद रखो, even though you can derive it in the exam, but still if you remember it, it will save a lot of time in exam. Okay. So we'll just work that out, the whole trigonometric values ka table, we'll work it out so that you'll be clear that what I have to remember
and what I can derive, what is okay to derive in the exams, for your JE, also in your NDA, or whatever exams, competitive exams, board exams you give. Okay, so it will really be helpful for you. Okay, before moving forward, I expect you now to remember these three fundamental identities. Okay, ये आपने 10th क्लास में भी किए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, nevertheless we'll just write it. ओके, एक 5-10 मिनट का रिकैप कर लेते हैं, अपनी थोड़ी 10th की मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी. फर्स्ट वन वाज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, और तीसरा था इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज 1 प्लस tan का कोटैन हो जाएगा, दैट इज cot स्क्वायर थीटा, और sec का कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज, आई बिलीव ऑल ऑफ यू, it must be like ingrained on your mind and on the tip of your tongue. So एक बेसिक, क्या कहते हैं, टेस्ट करेंगे. ठीक है, so we'll solve one or perhaps three questions which will help you कि इसको कैसे यूज किया जाता है ये तीनों आइडेंटिटीज को, so that it will just an exercise to reinforce these identities on your mind. Okay, so I'll just write the question. You can pause the video, try to solve it. They're very easy, एकदम फुद्दू से क्वेश्चन है, it's like हलवा. ठीक है, but still we'll do it. Okay, तो पहला क्वेश्चन है कि sec raised to 4x minus sec square x is equal to tan raised to 4x minus tan square x. ठीक है, you have to prove this thing. ठीक है, so you can pause the video and try and solve it. Okay, so before we go ahead and solve it, I'll just tell you कि आज का हमारा लेक्चर प्लान क्या है. देखो, हमने लास्ट लेक्चर में, I'll just show you this thing. ठीक है, तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में हमने ये तीन चीजें पढ़ी. ठीक है, सी दिस इज द फर्स्ट थिंग कि कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूलाज, एंड देन डबल एंगल के फॉर्मूलाज, ये हमने देखे. सो इसके लिए हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए, आई गेस किए हैं कुछ, लेकिन डेडिकेटेडली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने सॉल्व नहीं किए. ठीक है, डबल एंगल के तो कुछ हमने छुआ भी नहीं है इसके क्वेश्चंस को. ठीक है, सो ये नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, राइट. सो बिफोर वी start with the complementary functions के questions, I just want you to have your basics right. ठीक है, so in because I'll just tell you a short story. I used to hear this in my childhood that एक बार एक तबला मास्टर होता है, उनके पास दो स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, टू स्टूडेंट्स अप्रोच अ तबला मास्टर, and they ask for what is the fees, master ji. So the tabla master, he asked the first boy, let us name him as boy A. So he asked him कि आपने कभी कुछ lessons लिए हैं पहले से. So boy A says नहीं, मैंने कोई lessons नहीं लिए, I'm a fresh freshman, कुछ भी नहीं आता है मुझे तबला. So he says okay, then I'll charge you 1,000 rupees per month. So then जो the boy B, then he asked, then okay, fine, then I'll also pay 1,000. No, he said, how, like, have you taken any lessons of tabla? He says, मैंने भी कुछ lessons लिए हैं, I've taken a few lessons on tabla. So then he says, okay, then I will be charged rupees 1,600 per month. He says, why? I have taken some lessons, you should be like reducing the fees, how come you're increasing the fees? So then the tabla master says कि, you might have learned something, but I don't know whether you have learned it right or wrong. Okay, so जो भी आपने गलत चीज सीखा है पहले से and आप वो करते आ रहे हो, I have to first undo it. Correcting that and then teaching you new will take a lot of effort.
So that is why I am charging you more. Okay, so I don't know what have you have been studying, since your 8th 9th 10th class, what concepts you have been building. And because there's no personal contact also, so I cannot really get at what level you are. So first of all, I want your basics to be very right, and for that we are going to solve these three coming questions जो अभी हम करने वाले हैं. इससे थोड़े आपके बेसिक्स में हेल्प हो जाएगी कि कैसे अप्रोच करना है, कौन से आइडेंटिटीज कहाँ पे यूज करने हैं. ओके, सो फर्स्ट लेट अस गेट आवर आइडेंटिटीज राइट. ओके, ये पहले आइडेंटिटी सीख लेते हैं, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देन वी विल सी सम कार्टेशियन प्लॉट्स, और उसमें द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. ठीक है, फिर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखने हैं. जब ये दोनों चीजें हमारी it will be like cemented, then we'll go and solve the questions for complementary angles. Okay, so let us start. So I hope you have tried the question now by now. If not, you can go on and try. Okay, मैं solution शुरू कर देता हूँ. Okay, so starting with proof. Okay, तो let us take left hand side. क्या है? sec raised to 4x minus sec square x. ठीक है, तो इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, sec square x कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, sec square x minus 1. ठीक है, तो अभी ऊपर हम लोग अगर आपने आइडेंटिटी ये देखी होगी, और दिस सेकंड वन, ठीक है, वो हम लोग यूज करने वाले. इफ यू सी, इफ आई पुट दिस 1 on this side of the equation, it becomes tan square theta is equal to sec square theta minus 1. ठीक है, तो यहाँ पे sec square x minus 1 क्या बन जाता है, tan square x. So I'll write it as sec square x multiplied by tan square x. ठीक है, अभी we have solved left hand side, I'll name it as 1. थोड़ा right hand side भी solve कर लेते हैं. ठीक है, तो दोनों तरफ से solve करके कहीं बीच रास्ते में मिलेंगे हम लोग. ठीक है, so we have on right hand side tan raised to 4x minus tan square x. ओके, यहाँ से tan square x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, tan square x minus 1, right? Okay, I'm sorry, this should be plus. क्वेश्चन में ये प्लस होना चाहिए. ओके, so tan square x plus 1 is sec square x. So tan square x multiplied by sec square x. ठीक है, तो ये दोनों 1 and 2 are equal, right? So LHS is equal to RHS. ठीक है, and then we can write the achievement slogan, that is hence proved. Okay, second question, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेंगे. क्वेश्चन 2 is, यहाँ पे उन्होंने पूछा है हमें कि if sin theta plus sin square theta equals to 1, then prove that cos raised to 12 theta, okay, plus यहाँ पे है 3 cos raised to 10 theta, okay, 3 cos raised to 10 theta plus 3 cos raised to 8 theta, okay, plus cos raised to 6 theta equals to 1. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन. तो ये लिखते लिखते ही बहुत ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा है तो बहुत डिफिकल्टी होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, सो इससे पहले देयर इज अ प्रीरेक्विजिट. आई नीड यू टू नो सम फॉर्मूलाज. आई बिलीव यू मस्ट बी नोइंग दिस फॉर्मूला, a plus b whole square, a minus b whole square का फॉर्मूला. Also it is necessary that you know a plus b whole cube का फॉर्मूला. Okay, a minus b whole cube formula. Okay,
So a plus b whole square is a square plus 2ab, राइट, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी दिस ऑल्सो शुड बी क्यूब, ओके। और इसका होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओके। तो ये चारों चाहिए तो लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, लेकिन याद रखो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अब देख कि थोड़ा सा किसी को अंदाजा हो गया होगा, यू नो, इफ यू गेट दिस थिंग, इफ यू गेट दिस स्नैक, आई यू शुड नो दैट यू नो योर मैथ्स इज रियली गुड, और आपको मैथ्स सॉल्व करने की आर्ट है, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ओके। ये यूज होने वाला है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, तो इससे इट शुड हिट यू दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके। तो अभी ये फॉर्मूला में ये पूरे इक्वेशन को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो देखो यहाँ पे 3 है, मतलब ये कोई सेकंड टर्म है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये कोई थर्ड टर्म है, सेकंड या सेकंड और थर्ड टर्म, okay, both of this can be the third term or second term, this can be the third term or second term, okay, this is the first term, the second term, the third term and the fourth term, ठीक है। तो इसमें से कोई या तो ये सेकंड टर्म है, या तो ये सेकंड टर्म है, या फिर ये थर्ड है, या फिर ये थर्ड है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम दी, यू नो, इट हैज द कांस्टेंट 3 बिफोर इट। और इसमें से जो फर्स्ट टर्म है और फोर्थ टर्म है, दैट इज बी क्यूब और ए क्यूब, दोनों में से एक है, और दोनों क्या है, क्यूब है, सो वी हैव टू वांट इट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, cos रेज टू 4 थीटा का क्यूब, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। और लास्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे कि cos रेज टू 2 थीटा का क्यूब, ठीक है ना। सब ये क्या हो जाएगा, cos रेज टू 6 थीटा, और ये हो जाएगा cos रेज टू 12 थीटा। और बीच वाले टर्म्स क्या है, अभी हमें ये तो पता चल गया कि a is cos रेज टू 4 थीटा एंड b is cos स्क्वायर थीटा, तो बीच वाले टर्म्स क्या होंगे, प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b, इसका क्या मतलब हुआ, cos रेज टू 8 थीटा, ठीक है ना। आई होप यू नो दिस थिंग दैट a रेज टू लाइक 2 रेज टू 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a is रेज टू 2 into 3 which is nothing but a रेज टू 6, ठीक है ना। ये फैक्टर, ये चीज, ये कंसेप्ट आपको पता है शायद, ओके। इफ नॉट स्टिल हैव टोल्ड यू ये कैसे होता है। ये सिमिलर चीज यहाँ पे यूज करना है। तो ए स्क्वायर अगर होगा तो ए है cos रेज टू 4 थीटा, और उसका स्क्वायर करना है, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा cos रेज टू 8 थीटा। और फिर क्या है b, तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस क्या है 3 टाइम्स, ओके, ये टर्म नीचे लिख लेते हैं, स्क्रीन में आएगा नहीं वो। सो 3 टाइम्स यहाँ पे लिखते हैं प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, और ये है अपना b टर्म। और यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर, सो इट इज लाइक cos रेज टू 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब cos रेज टू 4 थीटा, okay. So surprisingly we get the same, you know, equation. See, this is nothing but cos raised to 12 theta. This here is nothing but cos raised to 6 theta. ये वाला जो टर्म है देखो, cos raised to 8 theta multiplied by cos square theta, तो ये दोनों को हम, you know, since the base are same, we'll add the powers, so we get cos raised to 10 theta, जो कि यहाँ है देखो, same over here, this becomes cos raised to 8 theta, right, which is here. तो दोनों सेम है, सो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, you know, this left hand side is nothing but cos raised to 4 theta plus cos square theta का क्यूब, राइट।
और देखो अभी अभी हम क्या करेंगे, हमको एक गिवन चीज दी है उन्होंने, जो कि है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये दिया है उन्होंने, ये गिवन है कि साइन थीटा प्लस, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि 1 माइनस साइन थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा अगर हम राइट हैंड साइड में डाल देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, व्हाट वी गेट इज cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, right? जो कि यहाँ है। So what we have is sin theta is equal to cos square theta। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन देख लो। ठीक है, तो cos square theta के जगह मैं sin theta लिख दूंगा और cos raised to 4 theta के जगह में sin square theta, right? एक बार लिख लेते हैं to make it clear to you कि this is nothing but cos square theta raised to square, cos raised to 4 theta can be written like this, right? Plus cos square theta। ठीक है, so we'll substitute cos square theta as sin theta, what we get is sin square theta plus sin theta। okay, और given में दिया है कि this is equal to 1, right? so what we get is 1, so इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 का क्यूब, that is nothing but 1, right? which is our RHS, right? So hence proved, I can write, okay, hence proved। okay, I hope you are understanding the explanation। बहुत ही सिंपल है। देखो पहले हमने क्या किया, we use this formula a plus b whole cube, और हमने देखा कि ये एक्चुअली एक्सपेंशन है, यू नो, ऑफ द थिंग दैट cos raised to 4 theta plus cos square theta का होल क्यूब। इसको अगर ये फॉर्मूला से हम लोग एक्सपांड करेंगे, यू नो, इफ वी एक्सपांड this whole term, okay, using this formula, what we get is this equation, the LHS of this equation, right? So then what we did, हमने ये फॉर्म में लिखा उसको, फिर हमने गिवन डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमको क्या रिजल्ट मिला, we got that sin theta is equal to cos square theta। okay, so now in this equation we substituted cos square theta as sin theta। ठीक है, so we just wrote cos raised to 4 theta in the form of cos square theta का whole square, and we substituted cos square theta as sin theta। तो हमें क्या मिल जाता है, sin square theta plus sin theta, और गिवन में ऑलरेडी दिया है कि that is equal to 1। okay, so we take it as 1 और उसका क्यूब कर देंगे, right, as it is done in the LHS, and what we have is the RHS। okay, it's very easy to understand। okay, still if you don't get it, you can, you know, ask me, I'll be happy to again explain it to you। okay, so let us take to the third question। okay, question 3 में उन्होंने दिया है कि if x is equal to sec theta minus tan theta, okay, and y is equal to cosec theta plus cot theta, okay, then find xy plus 1 equals to what। okay, ठीक है, तो इसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, okay, okay, I guess you can hear me। so what we'll do is you know, ये जो है we'll work this out। okay,
solution. ठीक है. So now we know that x is sec theta minus tan theta, y is equal to cosec theta plus cot theta, right? तो बेसिक फंडा हम लोग यूज करेंगे कि इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे एंड विल वर्क दिस थिंग आउट. ओके, एक्स वाई प्लस वन. तो एक्स वाई प्लस वन उन्होंने पूछा है, तो यहाँ लिखते हैं पहले x इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. तो x बनेगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट? एंड y will become 1 by sin theta plus cos theta by sin theta, okay, plus 1. I hope everyone is with me कि यहाँ तक सबको समझा है. And you know this, that tan is sin upon cos and cot is the reciprocal, that is cos upon sin. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. So solving this, what we get is 1 minus sin theta divided by cos theta को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1 plus cos theta डिवाइड बाय sin theta, है ना, प्लस 1. ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गेट इज 1 times 1 is 1, 1 times cos theta is cos theta, then we have minus sin theta, right? And minus sin theta into cos theta is minus sin theta cos theta. ठीक है, और यहाँ पे है cos theta multiplied by sin theta. Okay, let us just once check कि कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम लोग. ठीक है, so what we'll do is, ठीक है, x plus x into y plus 1 किया हमने, and we solved this, LCM लिया यहाँ पे भी. okay, everything is fine so far. okay, तो अभी क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी LCM ले लेते हैं, right? So what we have is 1 plus cos theta minus sin theta minus sin theta cos theta, है ना, प्लस sin theta cos theta, right, whole divided by sin theta cos theta, right? तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है. so what we have is 1 plus cos theta minus sin theta divided by sin theta cos theta. ठीक है, ये मिल गया हमें. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना. we'll write this one as cos square theta plus sin square theta. okay, cos square theta plus sin square theta. okay, ये जो one है, okay, इसको हमने लिखा cos square theta plus sin square theta because we know cos square theta plus sin square theta is 1, right? फिर आगे लिखेंगे remaining terms, that is cos theta, sorry ये minus sin theta minus sin theta, right, whole divided by sin theta cos theta. ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपली हम लोग स्प्लिट करेंगे ना विद द डिनोमिनेटर. तो क्या मिलेगा हमें, cos square theta डिवाइड बाय sin theta cos theta, right, प्लस sin square theta डिवाइड बाय sin theta cos theta, right, प्लस cos theta डिवाइड बाय sin theta cos theta माइनस sin theta डिवाइड बाय sin theta cos theta. ओके, तो अभी कैंसिल आउट कर लेते हैं जो भी हो सकता है. ये स्क्वायर गया या cos थीटा गया, ये स्क्वायर गया, ये sin थीटा गया, cos थीटा कैंसिल, sin थीटा कैंसिल. तो क्या मिलेगा अभी हमें, देखो यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, sin अपॉन cos होता है tan थीटा. ठीक है, tan थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे 1 by sin है मतलब cosec थीटा, माइनस यहाँ पे क्या है 1 by
cos है मतलब sec थीटा। ठीक है, ये सब हमें मिल गया है। अभी what we'll do is we'll find the answer in terms of x and y. Okay, this is what is expected. Actually ये MCQ है, we have to find the answer in terms of uh, x and y. So but this is what the answer is, what we have got. तो इसको अभी x and y के terms में लिख लेते हैं। See, x is sec and tan, y is cos and cot, तो दोनों को separate कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे cot थीटा प्लस कोसेक थीटा एक साइड में कर लेते हैं और दूसरी तरफ कर लेते हैं प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट। माइनस साइन कॉमन ले, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट इट बिकम्स इज, सी केयरफुली, व्हाट इट बिकम्स इज y माइनस x, राइट। ये टर्म तो y है, दिस इज y minus this term is x, so that is our answer. Okay, so xy plus 1 is y minus x. Okay, this is how we get our answers. Okay, okay, so moving forward we'll see how to make a table for trigonometric values. Okay, first of all let me just insert a picture of it. Okay, it's right here. Okay, I hope you can see this table. Okay, so just make a correction over here. ये टेबल में यहाँ पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। Okay, and further also write the radian angles over here. This is pi by 6, this is pi by 4, this is pi by 3, pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, right, this is 2 pi, right. Okay, तो अभी इसमें we'll just make this table on our own। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, we'll just scroll down and we'll try to make this whole table on our own और देखते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है इसमें। ठीक है, so let us start with sine, then we have cos, then tan, then cot, then we have sec and cosec। Okay, and यहाँ पे angles लिख लेते हैं। So we have 0, 30, 45 and 60, then 90, then 90 plus 30 is 120, then 90 plus 45 is 135, then 90 plus 60 is 150, and then 90 plus 90, that is 180। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी we can go on expanding। Okay, so sine of 0 is 0, sine of 30 is half, sine of 45 is 1 divided by root 2, sine of 60 is root 3 by 2, and sine of 90 is 1। ठीक है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। Okay, this thing if you know you can make the whole table। ठीक है, पूरा का पूरा बना सकते हो, just need to know sines values up to 90 degrees। Okay, और ये भी आपका angles and measurements हुआ है तो आपको ये पता रहेगा that radian this is 0, this is pi by 6, pi is 180, this is pi by 4, then pi by 3, pi by 2, right? I hope I wrote it correctly। ऊपर भी, yeah, I've written it correctly। Okay,
तो इतना आपको याद है, अगर रट्टा मार लो, देखो साइन ऑफ 90 हाफ होता है, 45 1/√2 होता है, साइन ऑफ 60 √3 होता है। आप ये कहाँ देखेंगे? You'll even see this in, you might have studied this 30 60 90 degree triangle। ट्रायंगल अगर ये यहाँ ऐसे कुछ 45 डिग्री अगर है, right, so this is 45, this is 90, this is 45, then this side, the x side, suppose this is hypotenuse, this is y side, so we know this, right, that the x is h divided by, or h multiplied by 1 divided by √2 है ना, 45 है तो you must be knowing this, right? And if we have a 60 30 60 90 degree triangle, तो ये दोनों एंगल्स, ये 90 डिग्री है, दिस इज आवर hypotenuse, and if this is 30 degree, this is 60 degree, then the side opposite to 30 degree, suppose that is a, then it is hypotenuse into half, right, 30 degree के opposite, और जो side b है it is √3/2 times hypotenuse, right? So वही से same principle है, देखो how do you get this? See, if you apply sin 30 over here, it is opposite upon hypotenuse. So opposite upon hypotenuse. That is nothing but a upon h, and sin 30 is half. You see, we get the same thing. Okay. So it is very easy to remember all of this. If you apply sin 60, you'll get the same thing. If you apply sin 45, you'll get the same thing. Okay. So it is the same principle. So just try to remember these first, values up to 90 degree. Okay. Now, how to get further values? तो देखो, cos के लिए पहले हम cos के लिए up to 90, सब up to 90 डिग्री ढूंढते हैं, up to tan, and then we'll go further more, okay? तो cos के लिए अगर ढूंढना है तो you just have to go reverse। भी यहाँ पे sin 90 पे 0 है ना, तो ये cos 0 पे, सॉरी, sin 90 पे 1 है, तो cos 0 पे 1 आ जाएगा, okay? And then this will come over here, that is √3/2, so cos of 30 is √3/2, ये वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1 divided by √2, और यहाँ पे हाफ हो जाएगा, right, and cos 90 will be 0, okay? I've completely reversed it, okay? Conjugate जैसे जैसे हम conjugate complementary angles जैसे होते हैं, okay? Because this is a complementary function, right? Okay. And now for tan, how do you get value of tan? You know that tan is nothing but sine upon cos, right? तो 0 upon 1 is 0, right? Half by √3/2 क्या बचेगा? 1 divided by √3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? It will be 1, है ना, दोनों सेम है। यहाँ पे √3/2 divided by half, √3/2 divided by half is √3, right? And 1 divided by 0 is infinity, or like most of the time you have studied it as not defined, okay? So it is the same thing. Now we'll write the other things in red ink, which it's not like you really don't need to remember all this, okay? बाकी सब derive हो सकता है, okay? तो मैं green pen से जो भी लिख रहा हूँ, black ink में जो भी लिखा है, आपको याद रखना ही रखना है, okay? इससे ही आप बाकी के dependent green ink में जो है वो याद रखोगे, and with time, जो green में लिखा है, it will be like, it will be like your muscle memory। अगर आप cos 45 लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ही लिखेगा is equal to 1/√2, okay? So up to green it is very important to remember all the things, okay? So you should not waste time in deriving tan of 45, tan of 90 degrees, okay? So you can just remember this, start working out with the table and you'll remember it with some time। जो मैं अभी red ink में बना रहा हूँ, these things you can derive, okay? So let's write the red ink। So cot is nothing but complementary of tan, right? Also I can say that cot is cos upon sin, ठीक है?
तो कॉट जीरो क्या होगा, 1/0, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। देखो फिर यहाँ पे √3/2 डिवाइड बाई हाफ, तो ये बन जाएगा √3। यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे बनेगा 1/√3, है ना। देखो हाफ डिवाइड बाई √3/2, तो 1/√3, और यहाँ पे बन जाएगा 0 डिवाइड बाई 1, दैट इज 0। तो देखो इसका बराबर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जैसे tan लिखा है उसका उल्टा मैंने कॉट में लिखा, है ना। ये इन्फिनिटी जो है ये यहाँ पे लास्ट में डाल दिया, राइट। और बाकी के जो भी फंक्शंस है ना, √3 यहाँ पे ला दिया। दिस इज 1, दिस इज 1 डिवाइड बाई √3, और ये 0 यहाँ पे चला गया, है ना। पूरा रिवर्स फेस हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो ये साइन को ऐसे, अगर मैंने स्माइली फेस ड्रॉ किया इसमें देखो, तो कॉस क्या हो जाएगा, राइट, एकदम उल्टा। सिमिलरली फॉर tan एंड cot, राइट। सो इफ आई ड्रॉ tan स्माइली फेस, तो cot क्या बनेगा, ये इरेज कर देते हैं, है ना। In a sense it is complementary, it is not reciprocal. Keep in mind, okay, sine is not reciprocal of cos, okay, sine is reciprocal of cosec, but it is complementary, cosine is complementary of sine, okay। वैसे ही यहाँ भी है, sec का complementary function होता है, सॉरी ये इस तरह बनना चाहिए, और ये इस तरह, ओके। मुझे पता है ये हेलोवीन फेस बन गया है बट स्टिल टॉलरेट माय आर्ट स्किल्स एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, ओके। तो चलते हैं आगे रीडिंग से, ओके। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पे ये साइन बना देता हूँ, सिंस दे आर रेसिप्रोकल, ओके। टैन है कॉट का रेसिप्रोकल, ठीक है, और साइन है कोसेक का रेसिप्रोकल, ओके। तो देखो सेक क्या बनेगा, 1/1, राइट, कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेक 0 बनेगा 1। सेक 30 क्या बनेगा, 2/√3, ओके, सो दिस इज 2/√3। सेक ऑफ 45 क्या बनेगा, √2, ठीक है। सेक ऑफ 60 क्या बनेगा, 2, और सेक ऑफ 90 क्या बनेगा, सेक ऑफ 90 बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ 0, मतलब 1/0, तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, वापस इंफिनिटी, ठीक है। वैसे ही कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल, तो देखो 1/0 ये बन जाएगा इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड, एंड देन cosec of 30 degrees इसका हाफ का रेसिप्रोकल, दैट इज 2। cosec of 45 is √2, है ना, 1/√2 का रेसिप्रोकल, और cosec of 60 is 2/√3। cosec of 90 is 1/1, दैट इज 1। तो देखो यहाँ पे भी यू नो दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। मैंने ऐसे ही शुरुआत की है, इन्फिनिटी यहाँ आ गया, 2 केम दिस साइड, √2 वही रह गया, फिर 2/√3 इस तरफ आ गया, 1 उस तरफ चला गया। So when these are complementary, sec and cosec, okay, but sec and cosec are not reciprocal of each other। याद रखना, मैंने reciprocal के लिए ये two headed arrows बना दिए, okay। So I'll just write it here as reciprocal, how should I write it, okay।
आई होप कि यहाँ तक सबको सब कुछ समझा है। ओके, अगर समझा नहीं है तो वापस रिवाइंड करो, वापस देख लो और फिर आगे बढ़ो। ओके, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ टू मेक दिस टेबल। ओके, तो आगे चलते हैं अभी। ओके, विल स्टिल यूज रेड पेन, क्योंकि जो हम आगे भी लिखने वाले हैं दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज इन टू रिमेम्बर। ओके, but you can always work it out in this table. Okay, also on the Cartesian plots you can work it out. ठीक है, तो यहाँ पे देखो sin 120, यहाँ पे अगर आप देखोगे, in order to explain you sin 120 I'll just pull out the sines graph। ठीक है, that's right, yes, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेंथन कर देते हैं। ओके, तो देखो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ 120 90 तक हो गया, यहाँ तक हमें वैल्यूज मिल गए, राइट। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ हाफ है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे है √3/2। ठीक है, कुछ आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं इसको, यहाँ पे हाफ है। ओके, तो अभी देखते हैं, देखो साइन 120 मतलब क्या होता है, 90 + 30 है ना, 90 के आगे 30 डिग्रीज, तो ये 90 है, राइट। 90 के आगे 30 डिग्री, ये यहाँ हो गया 120, यहाँ है 60, यहाँ है 45, यहाँ है 30, तो 30 45 60 90, 90 + 30 is 120। ठीक है, 90 + 45 is 135, 90 + 60 is 150। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट कट करेगा। ठीक है, 90 + 30 ये फर्स्ट पार्ट कट करेगा, तो ये वैल्यू क्या देगा, इट विल बी जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ, or rather I'll just draw it more clearly। देखो ये यहाँ पे 90 is equal to 1, ये यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है। ओके, दिस इज लाइक 1/√2, okay, which will be right here also। ठीक है, ये 45 है, सॉरी 50 है, सॉरी साइन ऑफ 30, दिस इज 30 डिग्रीज, यहाँ पे 0.5 है, ये वाला यहाँ पे। ओके, so this is 30, this is 45, this is 60, I hope you can see, this is 120, 135, this is 150 and 180। ठीक है, तो अभी देखो साइन 60 देता है 1/√3/2 वैल्यू, है ना, √3/2 जो यहाँ पे, और साइन 120 भी वही वैल्यू देगा। ओके, और फिर डिक्लाइन होते जाएगा, 135 वैल्यू देगा जो कि 45 पे है, और 150 वैल्यू देगा जो कि साइन 30 पे है। ओके, तो वही वैल्यूज हम लिखते हैं। ठीक है, सो इट विल गो लाइक, इट्स लाइक एन मिरर इमेज फ्रॉम हियर। ठीक है, so it's like √3/2, then it is 1 divided by √2, then we have half, finally we have 0 at 180 degree। तो देखो यहाँ पे at pi we have 0, right। और फिर ये सेम वैल्यूज रिपीट होंगी आगे इन दी नेगेटिव साइड। ओके, तो ये नेगेटिव होते जाएंगे। सो एक्चुअली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स अहेड। तो ये इस तरह से आप पूरे कर्व्स बना सकते हो। अभी ये आ गया है तो फिर कॉस का कर्व इसका बराबर एकदम से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, राइट। जैसे देखो, आई जस्ट इंसर्ट द कॉस कर्व आल्सो। कहाँ गया, ओके, ठीक है।
तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज फ्रॉम cos 120 टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सी सो दिस इज हाफ। अभी ये एक्सिस है, देखो x का या फिर थीटा का, तो यहाँ पे एंगल्स होते हैं। ये एक्सिस होता है y का, जहाँ पे वैल्यूज होते हैं। दिस इज +1 एंड दिस इज -1, ओके। और ये है 0, राइट। तो अभी यहाँ पे है π/2, राइट। और हमें ढूंढने हैं यहाँ के आगे के वैल्यूज। सो नाउ इफ यू सी दिस इज हाफ, तो यहाँ पे 3 डिविजन्स होंगे। पहले होगा 90 + 30, दैट इज 120। Then we will have, sorry, it will be 90 + 30. Then we will have 90 + 45 and we'll have 90 + 60, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, we have values 1/√2। अगर आपने देखा होगा तो वैल्यूज यहाँ पे ऐसे कुछ आते हैं, 1/√2। then we have, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, then we have no 1/√2 here, then we have √3/2 here, ठीक है। वैसे ही -½ उसके आगे थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, ओके। सो वी हैव 1/√2 नेगेटिव एंड नेगेटिव √3/2 और फिर -1 यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे जाके कहीं कट होगा, राइट। और ये यहाँ पे जाके कहीं कट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, अगर ये आप वैल्यूज देख लो, सो आवर साइन वी हैव sin 30, sorry, 90 + 30, that is sin 120. Then we have sin 90 + 45, that is 135. And we have sin 90 + 60, 150, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 120, 135 एंड देन वी हैव 150, ठीक है। तो अभी देखो ये 30 जो है यहाँ पे कट करेगा, तो साइन 30 के 130 की वैल्यूज हमें मिलेगी हाफ, विच इज इक्वल टू एक्चुअली साइन 60, ठीक है। और फिर 135 कट करेगा यहाँ पे, सो साइन 135 इज इक्वल टू -1/√2, है ना, विच इज like equal to sin of cos of 45. Then we have 150, so cos 150 will cut somewhere over here, so it is like -√3/2. So it is nothing but equal to cos of 30, but in negative, ठीक है ना। तो वैसे ही अभी यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये नेगेटिव है, साइन 120 है -½ ठीक है। साइन 135 था 1/√2, साइन 150, sorry, you're talking about cos, so cos of 120 is -½ cos of 135 is -1/√2 and cos of 150 is -√3/2 and cos of 180, see carefully, cos of 180 कितना है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो व्हाट यू हैव इज, सी कॉम्प्लीमेंट्री है स्टिल, यहाँ से 0 मैंने अगर ऐसे रख दिया, ठीक है, 90 आई प्लेस इट दैट साइड, हाफ जो है इस तरफ ला के रख दिया, 1/√2 is still here and √3/2 is here, ठीक है। सो इट इज स्टिल लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और ऐसे ही आप यू कैन मेक, नीचे के जो भी टेबल ना आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि यू नो व्हाट इज tan, इट इज sin upon cos, you know what is cot, it is cos upon sin, and sec is reciprocal of cos and cosec is reciprocal of sin. So that is how you get this table, ठीक है। I hope you are understanding what we are trying to derive and trying to write. And again I am saying, ये जो red में part है you need not remember, जो black में part है आपको ये याद ही रखना है। देखो
ये ब्लैक में जो पार्ट है ना, ये आपको कुछ भी करके याद रखना है, ठीक है, बट इट विल बी ऑलवेज बेटर इफ यू रिमेम्बर दिस होल थिंग, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ऊपर भी एक्सटेंड कर लेते हैं। So what I'm saying is it is mandatory for you to remember this red block, ठीक है, ये आप याद कर लो अच्छे से। if you remember this you can sail through all questions, ठीक है। मैं और एक चीज यहाँ पे बताता हूँ जो कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस की थी, प्लीज रिमेंबर दैट टू। इफ यू रिमेंबर ओनली दीज टू थिंग्स, ये टेबल के वैल्यूज जो कि ये रेड बॉक्स है और एक रेड बॉक्स में बनाता हूँ, यही पे बनाता हूँ, ठीक है। आई यूज अनदर ग्रीन इंक। जो हमने पहले भी लिखा है कि साइन ऑफ एन पाई, ठीक है, की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है -1 रेज टू एन, और tan ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है हमेशा जीरो, ठीक है। ये जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, ये भी एक रेड बॉक्स आप याद रखो। ये दो चीजें अगर आपने याद रखी, ओके, देन यू कैन फाइंड आउट any trigonometric value in the world, okay, by using the compound angle formulas, complementary angle formulas, and even double angle formulas and all the rest of the formulas that we have. So you can find out any angle if you know these two red boxes. Okay, I still get questions that can you, sir, can you give us the value of sec 240, cos 240, tan 195? तो आप ये दो चीजें याद कर लो, ठीक है। ये कैसे आता है ये रेड बॉक्स? आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड इट इन आवर लास्ट प्रीवियस क्लासेस, लेकिन वापस फिर भी देख लो। देखो साइन जो है ना, ये हर पाए पे, एन पाए पे, मतलब एन अगर जीरो रहा इट गिव्स वैल्यू जीरो, एन अगर वन रहा तो एट पाए, एन पाए दैट इज वन पाए, इट गिव्स वैल्यू जीरो, एन अगर टू रहा फिर भी साइन वैल्यू देता है जीरो, ओके। सो साइन एट एनी पाए, n पाए when where n is an whole number, तो वो वैल्यू जीरो ही देगा, ठीक है। लेकिन cos के केस में अगर देखो, if n is an odd number, ठीक है, n अगर odd number है, जैसे कि अगर 1 है, तो देखो 1 पाई पे n क्या वैल्यू देता है -1, तो n जब भी odd होता है ना, so it gives वैल्यू -1, ठीक है। n अगर odd रहा तो वैल्यू देगा नेगेटिव, ठीक है, इन cos, और n अगर इवन रहा तो वैल्यू देगा पॉजिटिव, क्या, लेकिन 1, ठीक है, +1 -1, ठीक है। तो ये सेम चीज है, वी आर जस्ट राइटिंग इट इन algebraic फॉर्म। देखो अगर ये इफ यू वर्क दिस आउट यू विल स्टिल गेट द सेम थिंग। इफ n is like odd number you will get -1, if n is even number over here so it will be squared and you will get a positive number, ठीक है। और tan क्या होता है, sin upon cos होता है, so 0 upon anything is always 0, so tan of n pi 0. Know these three things, okay, these three things and these three things, you can find out any trigonometric value in the world, okay, just by algebra, ठीक है। So I hope today's class is useful for you, और बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी, and still we have not yet touched the questions related to the complementary angle formulas, ठीक है। तो ये अभी तक भी बाकी है हमारा complementary angle के formulas, but we have done the basics of it। हमने fundamental identities अच्छे से सीख ली है, हमने trigonometric values जो है अच्छे से, ये दो रेड बॉक्सेस आप याद कर लो पहले, ठीक है, ये अच्छे से समझ लो, याद कर लो, ये बेसिक्स तो हमारे हो गए। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।